Today, a 1 rupee coin will decide trades on my $1,000 account. Heads is buy and tails is sell. So I created a $1,000 Forex account on which this coin is going to take trades. I had this question in my mind for a long time कि यार मार्केट्स की तो दो प्रोबेबिलिटी, या तो मार्केट्स का ऊपर जाएंगे या तो मार्केट्स का नीचे आएंगे, which means probability of occurrence of either of the side of event which is either going up or going down is 50-50, right? And एक coin को flip करने के result की probability 53%, right? So I had this thought in mind कि क्या मैं सिर्फ एक coin flip करके अपने account पे trade कर सकता हूँ? After all, it's all probability, right? So अगर probability coin के results की 50-50% है, markets के ऊपर नीचे जाने की probability 50-50% है, so I believe I should be able to trade with ease. So जैसे ही मुझे ये idea आया, I went online and created a $1,000 separate account just for a coin to trade on that account. Let's see, एक coin flip मेरे account को कहाँ लेके जाता है. To make all of this more fun, I decided to trade only one pair. And वो पेयर है XAUUSD, which is gold. अब गोल्ड चुनने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि गोल्ड अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम थ्रू आउट द ग्लोब, एंड अगर ट्रेडर्स की माना जाए सो इट इज नोन फॉर बीइंग द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पेयर, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेयर टू डू प्राइस एक्शन ऑन, क्योंकि इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, so there is a lot of volatility. So अब जब ये डिसाइड कर लिया कि कॉइन फ्लिप पे ट्रेड करना है, there has to be certain rules that I need to follow, right? So I made a list of 3 basic rules which I'm going to follow. Rule number 1, अगर heads आया, I'll take a long position which is a buy position, and अगर tails आया, I'll take a short position which is a sell position. Rule number 2 was I cannot get out of the trade unless and until it hits a profit target or a stop level. Means मैं ट्रेड से तब तक नहीं निकल सकता जब तक वो ट्रेड या तो अपना टारगेट हिट कर दे या फिर अपना स्टॉप लॉस बुक कर ले. Third and the simple rule was I was going to use the mini lots, which is 0.10 lot, and I was going to put 100 pips target and 50 pips SL. Means हर एक पिप की मूवमेंट पे मुझे $1 मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव. So if I hit a profit target of 100 pips, I'll secure $100, and if I hit a stop loss of negative 50 pips, I'll lose $50. Sounds simple? Let's begin. So I started, flipped the coin and made my first trade, and this is how it went. Hey, it's time for our first flip. बट इसको मैन्युअली हाथों से करूंगा तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और शायद मुझे फ्लिप करना भी ना है अच्छे से. So let's ask Google to do it. For our first flip, we are going to go on this website. Coin. Maybe this looks good. Okay. Here's the coin. Let's flip it. And we have got tails. मतलब कि हमको short position लेनी है. So here's my $1,000 account on which we are going to take trades. So gold is currently at 1739. So हमको sell का order डालना है. We'll select the lot size. Lot size will select 0.10 all the trades and we'll sell. Order is now open. We'll modify the orders क्योंकि हमको SL और TP लगाना है. अब हमारा करंट ऑर्डर वॉज समवेयर अराउंड 1739, मीन्स 1740. सो आवर टारगेट विल बी 1729 बिकॉज इट्स अ सेल पोजिशन, एंड SL वुड बी 1744 क्योंकि हमको 50 पिप्स का SL चाहिए. दैट्स इट, विल मॉडिफाई. सो हियर इज द कंप्लीट ऑर्डर, और हम लोग इसको चलने देंगे जब तक हमारा SL या TP हिट नहीं हो जाता. Good morning everyone. सुबह bad news. This is what we woke up to. Big loss. So it's time for another toss. Okay, so अब आपको पता है हिट्स आया है. So it's time for buying. Now that we have heads, we need to buy. So I'll go USD, new order, 0.10 हम लोगों ने account size रखा है, market execute करेंगे, buy. So we'll go
द ऑर्डर इज नाउ एक्टिव. हम लोग इसको मॉडिफाई करके SL और TP लगाएंगे. सो वी बॉट समवेयर अराउंड 46, तो 56 मेरा टारगेट हो जाएगा एंड SL वुड बी समवेयर अराउंड 46 minus 5, what is 41. So this is what we have. We have another trade. Let's see कि ये कॉइन फ्लिप हमारे अकाउंट को कहाँ लेके जाता है. एंड एक सेल एक बाय के बाद दिस इज हाउ इट एंडेड. आई रिपीटेड द सेम प्रोसेस अगेन. And this is what I got. At this point, I thought whatever I was doing, it was complete stupid. 3 trade किए, तीनों stop loss hit हुए. I need to scrap this video. But then I thought कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा? Probability का game है. Let's keep on continuing. देखते हैं कितना बुरा हो सकता है. How much more I can lose on that account. So I went through the process again, flipped the coin again, and ये मिला मुझे. So after 3 consecutive losses, this is what I got. अब मुझे लगा कि यार नहीं, वीडियो स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा. आई गॉट समथिंग टू शो. सो कॉइन ने पहली ट्रेड अपनी पॉजिटिव दी थी एंड इट वाज टाइम फॉर अनदर फ्लिप. लेट्स डू इट. फिफ्थ ट्रेड के बाद मुझे लगा यार नाउ दिस इज फन, क्योंकि अब मेरा अकाउंट ना सिर्फ अपना लॉस रिकवर कर चुका था, इट वाज नाउ एक्चुअली प्रॉफिटेबल. सो फिर क्या था, एक प्रॉफिटेबल अकाउंट के साथ आई स्टार्टेड अगेन. फ्लिप द कॉइन अगेन. दिस वाज द रिजल्ट. Flip the coin again, placed my orders, and this was the result. Flip the coin again for the one last time I thought, and this was the result. So 3 consecutive losses के बाद मुझे लगा अब मेरा टाइम आएगा, क्योंकि पिछले बार भी 3 consecutive लॉस के बाद मुझे 2 पॉजिटिव ट्रेड्स मिली थी. बट मेरा अकाउंट इस समय पे 10% ड्रॉडाउन में था. मींस अगर मुझे अब 2 consecutive प्रॉफिट्स मिल जाएं तो मेरा अकाउंट अपना लॉस रिकवर भी कर लेगा और 10% पॉजिटिव भी हो जाएगा. सो इसी उम्मीद में आई फ्लिप द कॉइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई वाज डन. आई हैड द रिजल्ट्स. सो पूरे एक हफ्ते मींस 5 ट्रेडिंग डेज एक कॉइन को देने के बाद this is what I got. So I took 11 trades. Out of 11 trades, only 2 were positive and 9 were negative, which means a 30% drawdown. Ouch. The coin gave an accuracy of only 18%, which means it was losing 82% of the times. And I don't think this is a good ratio. What do I learn from this? या फिर what you guys can take away from all of this? The first thing कि मार्केट सिंपली एक डायरेक्शन फॉलो नहीं करते, या फिर अगर वो फॉलो करते भी हैं सो वो इमीडिएटली वो रिएक्ट नहीं करते. राइट? इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम फॉर देम टू मूव ईदर इन अ हायर डायरेक्शन और इन अ लोअर डायरेक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर साइडवेज. ये कैसे पता चला? आप देखोगे फर्स्ट और सेकेंड ट्रेड वो बिल्कुल ही कोइंसाइड कर रही है आपस में. राइट? पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है. सो इट वोंट मैटर अगर आपको कॉइन एक डायरेक्शन देता है बाइंग की या सेलिंग की. हर बार वो 50% प्रोबेबिलिटी में ऊपर या नीचे नहीं जाएगा. मार्केट विल गो साइडवेज एंड दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ. मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम आर साइडवेज. दैट इज हाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट. मैं मार्केट्स में रैंडमली ट्रेड कर रहा था विदाउट एनी प्रॉपर लेवल्स. जिस तरीके से कॉइन ने मुझे रिजल्ट दिया मैंने तुरंत जाके ऑर्डर प्लेस किया. राइट? व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग वे. मार्केट्स सिर्फ ऊपर या नीचे की प्रोबेबिलिटी पे नहीं चलती. एक ट्रेडर हमेशा देखता है कि एट व्हाट रेंज ही इज बाइंग एंड एट व्हाट लेवल आर द ऑर्डर ब्लॉक्स, कहां से वो पलट सकता है. ये सारी टेक्निकलिटीज आर इंपॉर्टेंट टू टेक अ करेक्ट एंड स्पेसिफिक ट्रेड. Third point or third lesson is that you have to manage risk. I had a profit ratio of 1:2. मतलब मैं गवा $50 रहा था बट मैं कमा $100 रहा था. इसी वजह से आई बिलीव मेरा ड्रॉडाउन सिर्फ और सिर्फ 30% है. अगर मैं ये 1:1 रखता मींस अगर मैं $50 कमाता और $50 ही हारता, आई बिलीव माई ड्रॉडाउन वुड बी मच मच वर्स. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. मुझे पहले 3 ट्रेड में जो लॉस हुआ वो नेक्स्ट 2 ट्रेड में कवर हो गया. अगर परसेंटेज वाइज बोलूं तो मैंने पहले 5 ट्रेड्स में से 3 ट्रेड गवाई और नेक्स्ट 2 ट्रेड में कमाया, which means my win ratio was only 40%. बट वो 40% ने भी मेरा अकाउंट 5% पॉजिटिव कर दिया. That is the power of good risk to reward ratio. So the result speaks that market is just not the game of probability.
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या फिर सिर्फ प्रोबेबिलिटी के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मार्केट्स आर डायनेमिक एंड ट्रेडिंग करने के लिए हमको ढेर सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं। इट्स नॉट ओनली द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और इट्स नॉट ओनली द गेम ऑफ लक। इट इज अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, position sizing, and the most of all, correct price levels and the ability to move according to the market. जब मैं कॉइन फ्लिप कर रहा था, so I was not looking at the market. मैं मार्केट्स के साथ उनके डिसीजन पे रिएक्ट नहीं कर रहा था. If I was not relying on a coin and I was trading normally like a normal trader, I would have adjusted my position or my decision according to the market moves. मैं सिर्फ खड़े होकर अपनी positions नहीं देखता. Which tells you that trading is just not a game of luck or probability or gambling. It will require you to have the flexibility to move in all these departments and trade accordingly. That is how you practice and become more and more profitable. Well, that's it for the video. I hope you enjoyed it. And as I said, we'll be learning all these money, business, trading related concepts in a unique and a practical way. So subscribe if you want to elevate your mindset and like if you think the content was insightful. Thank you for watching. My name is Akash Soni, aka BN Mindset. Don't wish for it, work for it. अगर कॉइन का रेशियो इतना खराब है, सो जो कॉइन बोले अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो